Students, today we'll discuss the topic fructose. So I'll start the topic. The molecular formula for the fructose is C6H12O6. It is basically a ketohexose. Ketohexose means it is an monosaccharide having 6 carbon chain and ketone as a functional group. So basically ये एक ketone है, ठीक है ना, and 6 carbon atoms है. Now we'll start with the first one, that is open chain structure of fructose, also said to be the Fischer projection formula. Open chain structure of fructose, also said to be the Fischer projection formula. So beta, I have told you कि in ketohexose at the top you will have CH2OH, then C double bond O. After that, if you remember, at the bottom again CH2OH. This was the structure D fructose, जो मैंने आपको स्टडी किया था जब हमने डिस्कस किया था, जब हमने ग्लूकोज को स्टडी किया था. तो सेम यहाँ पर है, ठीक है. नाउ दीज आर द पोजीशंस ऑफ OH. लेफ्ट हैंड साइड, देन H is on the right hand side, OH right hand side, H is on the left hand side. Similarly this one, and all of you know this is carbon in the center. So this is, you can say, the structure of D fructose. D का मीनिंग आपको क्लियर है. CH2OH से नेक्स्ट कार्बन पर जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है. दिस OH इज ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज D fructose. अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं, आई विल ड्रॉ दिस वन, CH2OH CO, then CHOH COH. If this OH is on the left hand side, then this is said to be the L fructose. So these two, you can say, are the configurations of fructose. So आप कैसे रिमेंबर करोगे फ्रक्टोज का फॉर्मूला? बड़ा सिंपल है, एक बार शॉर्ट में देख लीजिए. सबसे पहले एट द टॉप यू हैव टू राइट CH2OH, then CO, at the bottom CH2OH, then what you have to do, this one, 1 2 2. Clear to all of you? This is D fructose. और बेटा इसमें अगर इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे, द मेथड इज अगेन सेम, CH2OH CO CH2OH, this as it is 1 2 3. This will be now L fructose, and these are the positions of OH, all of you well know. So this is regarding the open chain structure, also said to be the, you can say, Fischer projection formula. Now we will do the ring structure of fructose. Ring structure of fructose also said to be the Haworth projection formula. So जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम करेंगे, बेसिकली द फ्रक्टोस, it will have furanose ring structure. The furan ring is this one. This ring is said to be the furan ring. So just see, we are having two type of structures now. First is alpha D fructofuranose. Then we will discuss beta D fructofuranose.
See the structure carefully. First, draw the furan ring in both the cases. This is the furan ring. अब अल्फा डी में आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, कि जो OH होगा वो डाउनवर्ड है और बीटा डी में जो OH है वो अपर पोजीशन, ऑन द अपर साइड। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। दिस इज द CH2OH, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डी फ्रक्टोस अल्फा डी। क्लियर? सो यहाँ पर देखिए बेटा OH जो है वो नीचे की साइड आया है। ठीक है, तो जो CH2OH है ये अपर पोजीशन पे। दिस इज द CH2OH। जब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेटा ये CO का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये इसको यहाँ पर अब ज़्यादा डिटेल हम करेंगे नहीं, तो ये OH में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे C एज इट इज़ है, OH ही। अब देखिए ये जो पोजीशन है नेक्स्ट वाली, ठीक है, ये नंबरिंग कर देते हैं सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज कार्बन एटम 1, दिस इज 2, नाउ दिस इज द कार्बन एटम 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। बस अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टार्टिंग में CH2OH आ गया। लर्न क्या करना है, अल्फा डी का मतलब ये OH लोअर पोजीशन पे, बीटा डी का मतलब OH अपर पोजीशन पे। अब डायरेक्टली थर्ड कार्बन पे आना है। थर्ड पे OH लेफ्ट में है, सो लेफ्ट का मतलब क्या होगा, ये OH यहाँ पे अपर पोजीशन पे जाएगा दिस वे। अब फोर्थ कार्बन पे आइए, फोर्थ पे OH राइट हैंड साइड पे है, सो बेटा ये लोअर पोजीशन पे। अब फिफ्थ पे देखिए क्या चीज है, फिफ्थ पे CH2OH। क्लियर? और यहां पर जो OH था मैं क्लियर कर दूं, ये OH रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो फिफ्थ में आपका क्या बचा, CH2OH बचा, और यहां पर बेटा हाइड्रोजन। दो चीजें ध्यान रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सो फिफ्थ में व्हाट विल आई डू, CH2OH फिफ्थ पे हमेशा अपर साइड में होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो लर्न कैसे करें, बिल्कुल सिंपल, स्टार्टिंग से शुरू करना। यू हैव रिटन CH2OH, देन बीइंग अल्फा डी OH नीचे किया, फिर थर्ड और फोर्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया यहाँ पे, फिर फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऑन द अपर साइड, और यहाँ पर आएगा H। ये आपको रिमेंबर रखना है अच्छी तरह से। बीटा डी में एक ही चेंज है, ये OH जो है ये अपर साइड में गया, तो बाकी आपका CH2OH लोअर पोजीशन पे आएगा। दिस इज अगेन फर्स्ट कार्बन। नाउ ये बेटा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। रेस्ट स्ट्रक्चर इज सेम, सो यू विल डायरेक्टली ड्रॉ OH H H OH and this one CH2OH and H. So this is alpha D fructofuranose, this is beta D fructofuranose. रिंग स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू नो कि आप ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो और आप रिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो। क्लियर? सो नेक्स्ट वी विल ड्रॉ द, यू कैन से ऑप्टिकल और डिस्कस द optical isomerism in fructose. If I write the fructose, it will be like that: CH2OH, CO, C, OHH, COH, H, COH, H, then CH2OH. These carbon atoms, these are chiral carbon atoms. So fructose has 3 chiral carbon atoms, due to which we can say fructose is optically active. ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ कायरल कार्बन एटम, वो कार्बन एटम जिसपे चारों अलग ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हो, या एटम्स भी कह सकते हैं। सो इस कार्बन को कायरल नहीं किया, इस पे दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम कभी भी कायरल नहीं होता। इस कार्बन पे एक H एक OH, ये कंप्लीट ग्रुप और ये कंप्लीट ग्रुप कायरल कार्बन एटम। सिमिलरली इस पे बेटा OH H दिस कंप्लीट ग्रुप एंड दिस कंप्लीट ग्रुप। Similarly this OH H CH2OH and this complete group. So we are having basically 3 chiral carbon atoms. So it is optically active. Now number of optical isomers, or you can say stereoisomers in fructose
2 raised to the power n. N, all of you know number of chiral carbon atoms. I'll write here. N is number of chiral कार्बन एटम्स. तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए बेटा, 2 की पावर 3 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स. सो दिस इज रिगार्डिंग यू कैन से द ऑप्टिकल एक्टिविटी. नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट वन दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज. Preparation of fructose. It is prepared by the acidic hydrolysis of sucrose. Acidic hydrolysis of sucrose. So see the reaction. All of you know sucrose is C12H22O11 plus water इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. सो बेटा इसमें वाटर अगर आप ऐड करोगे तो कंप्लीट जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा C12H24O12. सो आई विल गेट C6H12O6 प्लस C6H12O6. दिस इज डी ग्लूकोज, दिस इज डी फ्रक्टोज. नाउ सी वन मोर थिंग. If I see the specific rotation of sucrose is alpha D for the sucrose is plus 66.5 डिग्री. और बेटा अगर डी ग्लूकोज की बात करें, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज दिस इज यू कैन से 52.5 प्लस 52.5. If the specific rotation of D fructose is concerned, it is minus 92.4 डिग्री. और अगर इसका नेट आप निकालो सो प्लस 52.5 माइनस 92.4 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 39.9 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन. सो पहले इसका मीनिंग देखिए मैंने क्या चीज़ किया है. सुक्रोस है, इट विल हैव द स्पेसिफिक रोटेशन, प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी. It will rotate the plane polarized light toward right hand side. Similarly alpha D glucose भी right side में rotate करेगा 52.5 डिग्री. बट फ्रक्टोस इज कंसर्न वो माइनस 92.4 स्पेसिफिक रोटेशन है. सो इट इज सेट टू बी द लीवो रोटेटरी. लीवो रोटेटरी मीन्स इट विल रोटेट द लाइट टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड. सो अगर इनको सॉल्व करके जो एग्जैक्ट आता है मुझे इस मिक्सचर का जो मिलेगा दैट इज माइनस 39.9 डिग्री. मीन्स जो मिक्सचर है दिस मिक्सचर इज अगेन लीवो रोटेटरी. सो इस पूरी रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो रोटेशन ऑफ लाइट था वो चेंज हुआ है. जो रिएक्टेंट था इट विल रोटेट द लाइट टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, whereas the product it will rotate the light toward left hand side. So this change in specific rotation is said to be the inversion. किसी भी रिएक्शन में अगर रोटेशन चेंज होती है लाइट की कि रिएक्टेंट जो है वो राइट में रोटेट कर रहा है, जो प्रोडक्ट है वो लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी द इन्वर्जन रिएक्शन. और ये रिएक्शन इज इन्वर्जन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच वी कैन से देयर इज change in rotation of light from dextrorotatory to levorotatory. So जो reaction है it is said to be now the inversion of sugar. Why inversion of sugar word क्यों यूज किया? Because sucrose is commonly said to be the cane sugar. Now one more thing, invert sugar. ये जो आपका मिक्सचर बना है डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज, दिस इज सेड टू बी द इन्वर्ट शुगर मिक्सचर ऑफ आई कैन से डी ग्लूकोज प्लस डी
fructose. So this is regarding, you can say, the preparation. Now we'll discuss the properties of, you can say, fructose. First we will discuss physical properties, then we'll discuss chemical properties. Physical properties of fructose. These are quite similar as that of glucose. It is simply a white crystalline solid. Number 2, soluble in water. रीजन आपको पता है, ड्यू टू formation of hydrogen bond with water. Now students, next we will discuss the chemical properties of fructose. The chemical properties of fructose are divided into some categories. First we will study the chemical reactions due to long 6 carbon chain. Then we will do the reduction reaction. Then we will do reaction due to ketonic group. Then we will do reaction due to OH ग्रुप. सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर कोई रिएक्शन कीटोनिक ग्रुप की वजह से, तो वो कंफर्म भी कर रही है कि फ्रक्टोज में कीटोन है. इफ देयर इज अ रिएक्शन विच इज ड्यू टू OH ग्रुप, तो वो कंफर्म भी कर रही है कि फ्रक्टोज में OH ग्रुप है. सो आई स्टार्ट फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी नाउ. रिएक्शन ड्यू टू 6 carbon chain, or I can say the reaction which confirms the 6 carbon chain in fructose. So I will draw the structure. CH2OH, this is the structure of D-fructose. Commonly हम ऐसे भी लिख सकते हैं, we can also write like that, CH2OH, then CO, CHOH 1 2 3 thrice, in the last CH2OH. So बेटा इसके लिए हमें जो रिएक्शन करनी होती है, that is we have to do HI red phosphorus. और मैंने आपको बताया था HI रेड फॉस्फोरस क्या करता है, इट रिमूव ऑल द ऑक्सीजन. सभी ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, तो हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट कार्बन चेन है, दैट आई विल गेट CH3 CH2 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 CH3. This is N hexane 1 2 3 4 5 6. Plus one more thing is formed, 2 आयोडोहेक्सेन इज आल्सो फॉर्म्ड. सेकेंड पोजिशन पे एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह पे वी विल गेट एन आयोडीन, CH2 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 CH3. So the formation of these product confirm the presence of 6 carbon chain in the fructose. Clear to all of you? Now next we will do, जब हमने बेटा रिएक्शंस को आपको बताया था, एक वहां पर एक सिंपल टाइप हमारा रह गया था ऑक्सीडेशन. तो एक बार यहाँ मैं नोट कर देता हूँ हम कौन कौन सी रिएक्शन करेंगे. फर्स्ट वी विल डू द रिएक्शन ड्यू टू 6 कार्बन चेन हम स्टडी करेंगे. देन वी विल स्टडी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन ड्यू टू कीटोन ग्रुप, एंड फिफ्थ वी विल डू रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप. सो ध्यान रखिए वहां पे ये चीज मिस हो गई थी, तो यहां पर हम इसको लिख रहे हैं, डजंट मेक एनी इशू. तो सेकेंड वी कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो फॉर ऑक्सीडेशन, फर्स्ट आई विल राइट फ्रक्टोस CH2OH CO CHOH
CHOH, CHOH, और वी कैन राइट प्रॉपरली, अगर नोट करें तब भी कोई, इसको प्रॉपरली ही कर लेते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस. For oxidation we yield concentrated nitric acid. अब ऑक्सीडेशन बड़े ध्यान से समझनी है आपको, यहां से आपको क्लीव करना है दिस पॉइंट, और ये जो CO ग्रुप है इट विल कन्वर्ट इनटू COOH. फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएंगे पहले हम, फर्स्ट प्रोडक्ट CH2OH एज इट इज, और बेटा इस CO ग्रुप को किसमें कन्वर्ट किया मैंने, COOH. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो डायरेक्टली देखिए एक ऑक्सीजन आपने ऐड ही किया. दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड. नाउ द सेकेंड प्रोडक्ट. अब बेटा यहां से ये जो प्रोडक्ट है इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या करना है आपको. दिस कंप्लीट ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH, वेयर एज दिस ग्रुप इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू COOH. देखिए एक ऑक्सीजन यहां पे ऐड हुआ, एक ऑक्सीजन यहां पे ऐड हुआ, तो ऑक्सीडेशन, तो सेकेंड प्रोडक्ट आई विल गेट COOH. देन ये अनचेंज्ड है जो इन बिटवीन थे हमारे, सो इनको मैं एज इट इज COHH, COHH, then COOH. This is said to be the tartaric acid. So on oxidation we'll get two things. Number one, glycolic acid. Number two, tartaric acid. So we have done the two reactions. Due to 6 carbon chain we have done, oxidation we have done. Now we will do first reaction due to ketonic group. Reactions due to ketonic group. In all these reactions सिर्फ कीटोन ग्रुप पे रिएक्शन करनी है, बाकी हमें टच नहीं करना है. दैट यू हैव टू रिमेंबर, कीप दिस थिंग इन योर माइंड. नाउ सी, CH2OH, then CO, CHOH thrice, CH2OH. हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली रिएक्शन यहीं पे है. सो फर्स्ट जो रिएक्शन होगी बेटा, द फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड. सी द रिएक्शन केयरफुली. H पॉजिटिव, CN नेगेटिव, और कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट इज डेल्टा नेगेटिव, इसको डेल्टा पॉजिटिव मानते हैं. तो सिंपल मैंने आपको बताया था, ये H इस पर ऐड होगा और जो CN नेगेटिव है ये कार्बन पर ऐड होगा. ठीक है. सो व्हाट आई विल गेट, देखिए बड़े ध्यान से, CH2OH, COH. ठीक है, इस पे H यहां लग गया, ऑक्सीजन पे CN भी यहीं पर हम दिखा देते हैं CN. नीचे आपका एज इट इज CHOH thrice, CH2OH. This is said to be the fructose cyanohydrin. Cyanohydrin means अगर किसी सेम कार्बन पर, सिंगल कार्बन पर यू विल हैव OH एज वेल एज CN, दैट इज सेड टू बी द cyanohydrin. सो ये हमारी पहली रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन. Second, reaction with H2NOH. This is said to be the hydroxyl amine. What you have to beta, ये oxygen और ये H2, they will eliminate H2O. So what is left? C out. CH2OH as it is, C double bond NOH. Now what is left? CHOH thrice, CH2OH. This is fructose oxime. Clear to all of you? Fructose oxime. Next we will do the reaction with Tollens reagent. थोड़ा इसको ओपनली नोट करते हैं टॉलेंस रिएजेंट के लिए. This is D fructose
नाउ रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। जो टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन थी वो बेसिकली एल्डिहाइड के लिए होती है और कीटोन के लिए भी, जिनमें अल्फा हाइड्रोक्सी हो, ध्यान रखना है। यहां पे कीटोन से अगले कार्बन पर OH है, इट इज अ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, देयरफॉर इट रिएक्ट्स with TR tolerance reagent, that is AgNH3 twice OH, 2 molecules. All of you know this is ammonical silver nitrate. Now what is the reaction? जो बेटा tolerance reagent है, it is simply a, you can say, oxidizing agent. सो ये ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन करने के बाद व्हाट इज फॉर्म्ड, ये जो बेटा OH ग्रुप है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो या हाइड्रोजन रिमूव कर दो। तो इस OH से हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा -H। सो व्हाट इज लेफ्ट, बड़े ध्यान से देखना है आपको, यहाँ से ये भी H निकलेगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो या हाइड्रोजन निकाल दो। तो इसने इस OH से H निकाला और यहाँ से भी H निकाला। सो व्हाट इज फॉर्म्ड, CH2OH CO। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ कार्बन पे ऑक्सीजन बचा, CO, लेस्ट एज इट इज, डजंट मेक एनी डिफरेंस, COHH, COHH, CH2OH। Clear to all of you? Now as far as byproduct are concerned, silver mirror is the observation mean, twice Ag silver mirror plus you can say 2 and 2 4 NH3 plus I will get water H2O. So this is simply the reaction with the tolerance reagent. Clear? Since इसने tolerance reagent को reduce किया है, ठीक है, therefore we can say fructose is a reducing sugar. चले शॉर्ट में देखते हैं क्या बनेगा। जो आपका ये कंप्लीट ग्रुप था इसको कन्वर्ट किस में किया है, CO ग्रुप में, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन व्हाट वी विल डू विद फेलिंग सॉल्यूशन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज विद फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग solution, it is a mixture of Fehling solution A plus B. So what will I get? I simply get CuOH twice plus OH negative. Now Fehling solution is also a oxidizing agent, और ये बेटा बेसिकली मैं क्लियर करूं, इट इज यू कैन से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, therefore it reduces Fehling solution, or you can say react with Fehling solution. So what happens, जो टॉलेंस रिएजेंट में हुआ था वही हुआ था, यहाँ से ये H निकलेगा, ये H निकलेगा, you will get the same product CH2OH, CO, CO, COHH, COHH, CH2OH। बाकी बाई प्रोडक्ट्स आपको पता है कि दिस CuOH twice Cu2O, brick red PPT, and this OH negative is converted into water. Since fructose ने Fehling solution को reduce किया, therefore we can say fructose is a reducing sugar. So one more reaction we will do, reaction with phenylhydrazine. This is the important reaction. First I will write CH2OH, then CO, then COH, HCOH, HCOH. चलिए, now phenylhydrazine, all of you know, H2N NHC6H5. सो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, वाटर विल बी रिमूव्ड, आई विल गेट
CH2OH, C double bond N, NHC6H5, CHOH, COHH, COHH, CH2OH. सो ये मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन का ऐड किया. नाउ if I add second molecule of phenyl hydrazine, that is H2N NHC6H5, second molecule. So what the second molecule does, क्लियर करना यहां से. इसको बेटा मैं ओपन करके लिख रहा हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2OH को. क्लियर. नाउ देखिए व्हाट इज फॉर्म्ड, ये NH2, ये H माइनस NH3. क्लियर. नाउ ये है C6H5NH और बेटा एक H ये माइनस C6H5NH2. अब क्या बचा आपके पास, सिंपल इट इज लेफ्ट, आई कैन से CH डबल बॉन्ड O, ध्यान कीजिए, एंड C डबल बॉन्ड N, ये पहले से था, NHC6H5, देन CHOH, OHH, OHH, इन द लास्ट CH2OH. तो ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन है, इसका फंक्शन क्या है, इसने CH2OH ग्रुप, यहां पे लिख रहा हूं मैं फंक्शन, what it has does, it has converted CH2OH group into CHO aldehyde group, that you have to remember. Now third molecule if I will add, plus H2N NHC6H5, third molecule of phenyl hydrazine. So ध्यान कीजिए बेटा, ये ऑक्सीजन और ये H2 माइनस वाटर विल बी रिमूव्ड. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, सी आउट, H C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन निकल चुका है, H2 से कंबाइन करके वाटर, व्हाट इज लेफ्ट, N NHC6H5. नेक्स्ट वी विल राइट फ्रॉम देयर C डबल बॉन्ड N NHC6H5, then CHOH, COHH, COHH, in the last CH2OH. This is osazone of fructose, or you can say fructosazone. अब जब आपने ग्लूकोज से रिएक्शन की थी, जो ओसाजोन बना था वो सेम था. तो ये ध्यान रखिए, एक स्पेशल मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म्स सेम ओसाजोन. ये बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट. क्लियर. सो बेटा ये जो रिएक्शंस हमने अभी करी, दीज रिएक्शंस आर ड्यू टू द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और ये कंफर्म करती हैं कि हमारा जो कंपाउंड है फ्रक्टोज, उसमें आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. नाउ फोर्थ पार्ट वी विल डू रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज. फोर्थ इज रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज. रिडक्शन का मीनिंग होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो आप नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और वी कैन यूज reducing एजेंट फॉर दिस पर्पस सच एज NaBH4 प्लस H2. सो दो तरह से रिएक्शन हो सकती है, आप हाइड्रोजन को दो तरह से ऐड कर सकते हो. नंबर वन, आप डायरेक्टली नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करो, देन व्हाट विल यू डू, आप रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर सकते हो. सो जस्ट सी आउट, दिस इज CH2OH, CO, नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूं CHOH थ्राइस, इन द लास्ट CH2OH. सो अगर आप नेसेंट हाइड्रोजन यूज कर रहे हो, डायरेक्टली आपने शो करना है, सो आई विल राइट 2H, या आप रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो NaBH4 प्लस H2O, सोडियम बोरोहाइड्राइड. सो प्रोडक्ट जो बनेगा, मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर इन द सेंस कि आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन पे ऐड होगा.
क्लियर, दोनों हाइड्रोजन मैंने यहां पे ऐड किए. सो आई विल गेट CH2OH, COHH. First is this CHOH thrice, CH2OH. Clear? This is said to be the D-sorbitol. सेकेंड क्या मिलेगा बेटा, ये जो OH है लेफ्ट साइड में, COH लेफ्ट साइड में, दिस वन रेस्ट एज इट इज. This is, you can say, said to be the D-mannitol. So what will I get? I get a simple mixture of D-sorbitol and D-mannitol on reduction. Direct hydrogen कीजिए या reducing agent use कीजिए, both products are same. Both products are same in 2. Now the last one is reaction due to, you can say, carboxylic group. No, sorry, hydroxylic group. Reaction due to OH, hydroxyl group, not carboxyl. So the reaction, all of you know, acetylation reaction that we have done in the glucose also. For this we will react with acetic anhydride. This is said to be the acetic anhydride in presence of ZnCl2. So see what is the reaction. So I'll write first CH2OH, CO, CHOH thrice, CH2OH. देखिए अब कितने OH ग्रुप हैं, 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 molecules are needed. So यहां पर ये बेटा ऐसे ब्रेक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट. सो मेरे पास क्या है, 5 CH3COO, दिस वन CH3COO, और यहां से आपके ये हाइड्रोजन निकलेंगे 5 हाइड्रोजन, दिस वन, और ये कंबाइन करके 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स माइनस. अब क्या बचा उसको नोट कर दीजिए. यहां से H आपने निकाल दिया है, सो आई विल राइट CH2O, देन CO, देन CHO, इसको मैं यहां पे 3 लिखता हूं, देन CH2O. क्लियर, हाइड्रोजन निकाल दिए, नोट किया है बस. अब ये ग्रुप बचा मेरे पास, एसिटाइल ग्रुप, इसको अटैच कीजिए. सो CH2O, COCH3, 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 फ्रक्टोस penta acetate. So student, this is, you can say, all about the topic fructose. That's all.